Good afternoon, everyone. Today we are going to start with the last of prehistoric culture, the Iron Age, which is associated with the rise of empire. And now this was a long civilizational journey that began with the Miocene age, and finally we are looking at the rise of empire, the whole journey that started when one of our ancestors climbed down the trees, tried to walk on 2 feet, and that's how bipedalism gave way to the modern civilization that we see today. So that was a quite a long journey and quite a miraculous because the same thing had not happened in any other species. So हमारी species के अंदर कुछ different था, and one of the best thing we had, the agility. The agility here, the word itself means flexibility, a kind of flexibility, but agility is flexibility with adaptation. We adapted, we try to adapt, we try to find solution. We lived in that age, and some of us made the sacrifice, some of us took the toil, some of us made the effort to find a solution to come out of that dilemma, come out of that ruckus, and that's how we progress so far. Now, इस time पे we are going to look at a quick recap from Paleo to the Iron Age. Now, Paleolithic was totally an age of ice, जिसमें giant mammoths थे, crude tools थे, stone tools, most of Mousterian culture made up of Levallois technique, hammer, stone, core technique, prepare core technique. And then in Mesolithic, the tools became microliths, and also they were of composite nature. क्योंकि Mesolithic तो आते आते Ice Age it came to an end, और साथ में environment में कुछ changes हुए. Environment became warmer. Warm environment की वजह से the glaciers, the snow it melted. इसकी वजह से aquatic resources भी जो है abundant हो गए. So now our ancestor, they had two kind of resources, the aquatic one and then other flora and fauna. तो aquatic वन तो आप समझ गए, fish वगैरह, and flora and fauna में अब floral vegetation was there जो आज हम खाते हैं, staple diets सब. And fauna में now there was a big change. जो ice age के अंदर large mammoths थे, वो यहाँ पे इस टाइम तक आते आते small game hunting हो गया. So इसके लिए tool modification, or tool, not just tool modification, tool manure was needed. क्योंकि उस Paleolithic में we had the tools that were good for that were optimum for hunting large mammoths, but giant tools थे, stronger tools थे, tools that were necessary for किसके लिए कह सकते हैं, for group hunting के लिए कह सकते हैं, जैसे एथलेटल हो गया. लेकिन यहाँ तक आते आते मीजोलिथिक में अब वो जो पेलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो टूल किट वो किस काम का नहीं, नाउ टूल्स जो है वो चेंज होने थे. सो इसी टाइम पे कंपोजिट टूल्स बने. सो और यही तक आते आते जो एथलेटल है, इट इट गिव वे टू, और इट इट वाज रीशेप इनटू बो एंड एरो. सो ये चेंजेस हुए मीजोलिथिक के अंदर. फिर जो नो एग्जिस्टेंस है वो भी सेमी नोमैडिक से सेमी सेडेंटिज्म हो गया. सम सेटलमेंट्स वर देयर, टेम्पररी सेटलमेंट्स जहाँ पे कुछ टाइम तक रुक रहे थे. फिर उसके बाद न्यूलिथिक आता है, एंड न्यूलिथिक इज कॉल्ड द फर्स्ट रेवोल्यूशन, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए. सेडेंटिज्म, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे आ गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज. सो फ्लोरा एंड फौना जो है जितने भी हमने मेसोलिथिक में देखी थी, वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग इट. फिर टूल्स जो थे दे वर ऑफ कंपोजिट नेचर थे बट मोर पॉलिश्ड. फिर फास्ट फॉरवर्ड टू कैलकुलिथिक एज. कैलकुलिथिक एज तक now when we have stayed at a particular place for a long time, so साथ में बहुत सारे changes हुए. population proliferated, उसकी वजह से जो ट्राइबल कन्फेडरेसी हैं या फिर क्लान या जो किनशिप बेस्ड ग्रुप जो हैं वो भी बनने लगे. क्लान ग्रुप्स लेटर provided fresh grounds for tribal confederacies, and tribal confederacies later provided fresh impetus to the rise of villages. So that's how by Calcolithic we saw the rise of villages and small urban settlements. Not the urban that we see today, but somehow
ट्रेड स्टार्ट हो गया था, तो ट्रेड की वजह से जो सेंटर्स जो थे, ट्रेड सेंटर्स, दैट वी उनको हम कैलकुलेटिक के अर्बन सेंटर्स बोल रहे हैं। फिर यहाँ तक टूल टेक्नोलॉजी के अंदर कॉपर यूज होने लग गया, फिर ट्रेडिंग हो गई इस तरह से। नाउ कैलकुलेटिक के बाद वी मूव ऑन टू ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के अंदर हमारे पास कॉपर एंड टिन मिला के ब्रॉन्ज टूल्स बन गए, मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन द कॉपर वंस। फिर साथ में यही जितने भी चेंजेस थे उनके अंदर और माइक्रो स्केल पे और सोफिस्टिकेशन और मॉडिफिकेशन या एडवांसमेंट कह सकते हैं। सो जितने भी चेंजेस जो हैं, जो भी टेम्पलेट क्रिएट हुआ था इन द नियोलिथिक, उसके बाद से जितने भी एजेस हैं नियोलिथिक के बाद, कैलकुलिथिक, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, तो जो वो टेम्पलेट क्रिएट हुआ था, जो वो सिविलाइजेशनल प्रैक्टिसेस क्रिएट हुई थी, उन्हीं के अंदर फर्दर एडवांसमेंट होते गए। यानी वी डिड नॉट लुक फॉर एनी फर्दर इन्वेंशन, जो हमारे पास ऑलरेडी थी। टूल्स हो गए, सिडेंटिज्म हो गए, डोमेस्टिकेशन हो गया, देन ये कह सकते हैं सोशल ग्रुप्स हो गए, उन्हीं के अंदर हम जो है एडवांसमेंट कर रहे हैं। लाइक टूल्स के अंदर जो देख रहे हैं आप, नियोलिथिक में कंपोजिट टूल्स है, कैलकुलिथिक में कॉपर टूल्स, एंड ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर प्लस टिन, एंड आयरन एज के अंदर आयरन टूल्स। और फिर उसके अंदर सोफिस्टिकेशन भी होता जा रहा है। फिर कैलकुलेटिक और ब्रॉन्ज एज तक वॉरफेयर भी आ गए, क्योंकि अब जब ट्रेडिंग ट्रेडिंग इकोनॉमी हो गई है, एंड ट्रेडिंग इकोनॉमी में सम पीपल स्टार्टेड हैविंग सरप्लस, सो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट इवन, या फिर कह सकते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी वाज देयर। वेल्थ इनइक्वालिटी की वजह से फोर्टिफिकेशन चालू हो गए, फोर्टिफिकेशंस, फिर जो किनशिप बेस्ड ग्रुप जो हैं, नाउ अगेन जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी है तो उनकी भी साइज बढ़ने लग गई, साइज बढ़ने लग गई, तो जो किनशिप जो नेटवर्क्स जो हैं, दे बिकेम सेल्फ सेंटर्ड, and now we started having an us versus them thing, us versus them differentiation, and that us versus them differentiation started having a toll on the group solidarities. नाउ जो ग्रुप्स जो थे, जितने भी पर्टिकुलर अपने अपने कॉन्सेंट्रेटेड थे अपने ग्रुप्स के अंदर, नाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग द अदर फॉर रिसोर्स एक्यूमुलेशन, फॉर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और फॉर वॉट एवर पर्पज। सो इस टाइम तक वॉरफेयर भी आ गए। और फिर जो कैलकुलेटिव के बाद वॉरफेयर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होने लग गए। साथ में वॉरफेयर है तो ट्रेडिंग इकोनॉमी, वॉरफेयर, फोर्टिफिकेशंस, और उनमें भी चेंजेस होने लग गए। और वो सारे चेंजेस जो हैं वो आयरन एज तक आते आते दे वर गिवन क्वाइट अ डिफरेंट स्कोप, क्वाइट अ डिफरेंट leverage that was quite, you can say, impossible to visualize during the Pleistocene epoch. और यही सेम चीज ऑस्ट्रेलोपिथेसिस के टाइम भी इम्पॉसिबल थी टू विजुअलाइज, इवन ड्यूरिंग होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस वी कुड नॉट हैव विजुअलाइज दैट इन जस्ट अ few years in not in today's timeline. I am talking about the global chronology, कि global chronology के time में, in a just a few crumbs of time, one species, one animal species that was just roaming among other species and fighting off predators and trying to live for its life, वो species जो है finally started making colossal structure, giant structures and making weapons. and आज के एज में वही चीज जो है, वही iron age जो है, it made us so capable that today we are talking about nuclear weapons and then hyper nuclear weapons. सम कुछ सालों में जो है ये जो न्यूक्लियर हाइप जो है ये भी हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, और वी माइट डेवलप सम different, some far advanced kind of weapons. All right, I'm going off topic now. Let's get back to the topic. So iron age के अंदर ये जितने भी changes हैं आपको एक recap दे दिया. Now iron age जो है, it is the final phase of prehistoric triad, of stone, bronze and iron age. So finally iron age had, and it began around 1200 BCE in parts of West Asia and later spread to South Asia in our country by 1000 BCE. Fair Iron Age, as the name suggests, it is characterized by adoption of iron metallurgy for tools, weapons and implements, and it transformed every aspect of our life, every aspect of civilizational
civilization that matter for that time, that included agriculture, warfare, craft and trade. फिर why iron? तो जो क्वेश्चन है, स्टोन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बाद आयरन. सो in one way or another it was technological upgradation. Now upgradation in what? So we wanted something that was easily available, easily accessible, and more durable, stronger. That's how we make economic decisions. If कोई चीज हमें मिल जाए which is accessible, accessible in our term, that we can uh, get it with far less cost. अगर ऐसी कोई चीज मिल जाए और if it is more durable, so we are going to take it, just like plastic. So जिस तरह एक टाइम पे आयरन था, वैसे ही आज जो है प्लास्टिक की बात करते हैं. सो यही सेम जो इकोनॉमिक माइंड जो था वो उस टाइम पे था. सो आयरन जो है, इट वाज एक्सेसिबल, इट वाज मोर ड्यूरेबल देन कॉपर एंड टिन. एंड सो इसके लिए, इसी के लिए ये अपग्रेडेशन हुआ. देन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये है कि आयरन एज इज क्लोजली लिंक्ड विद पेंटेड ग्रे वेयर एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. दोनों कल्चर्स हैं, और आगे पॉटरी में आपको समझाऊंगा दोनों क्या है. ये दोनों कल्चर, और इनके साथ ही आयरन एज, and you can equate it with PGW and NBPW, and then with later Vedic period and the emergence of Janapadas and Mahajanpada. जो महाजनपदा है वही हम आगे पढ़ेंगे. फिर एविडेंस है फ्रॉम अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, उज्जैन, तक्षशिला, when we have the evidences of agricultural tools of made up of iron. और सेम ये जो सिविलाइजेशन है, आयरन एज जो है, it was not just concentrated in India, it is spread in other global empires as well, such as Assyrians, Hittites, Greeks and later Romans. और इनमें दो एग्जाम्पल आपको आगे दिए हुए हैं. Now let's talk about the technological advancement, iron versus bronze. Why iron? So first, it was naturally available and more accessible than copper and tin. क्योंकि कॉपर एंड टिन जो है दोनों एक साथ नहीं मिलते थे, तो उनको कहीं और अलग अलग जगह से लाना पड़ता था. एंड इंडिया में बात करें, सो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो जो है, विदर्भा एंड मालवा. छोटा नागपुर प्लेटो, जैसे ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, एंड दिस वन इज विंध्यन माउंटेन रेंज. सो ये जो एरिया है, दिस वन, ये है छोटा नागपुर प्लेटो. एंड देन ये एरिया विदर्भा एंड मालवा दोनों कह सकते हैं. विदर्भा इन महाराष्ट्र, मालवा इन मध्य प्रदेश. सो दिस टोटल बेल्ट, ये पूरा जो है, इट इज आयरन रिच बेल्ट. एंड सिमिलरली यूरोप के अंदर भी एनाटोलिया, विच इज इन प्रेजेंट डे तुर्की, एंड ग्रीस एंड सेंट्रल यूरोप, यहाँ भी आयरन रिच डिपॉजिट्स है. और बाकी जो कॉपर, कैलकुलेटिक एज और ब्रॉन्ज एज में आपने देखा है कि कॉपर एंड टिन जो है दोनों इतने एक्सेसिबल नहीं थे. कॉपर इंडिया की खेतड़ी माइन से मिल रहा था, टिन जो है वो अफगानिस्तान से आ रहा था. इस तरह से जब दोनों साथ में नहीं मिल रहे हैं, और सब कोई चीज साथ में मिल रही है, तो और साथ में ये है कि द कॉस्ट ऑफ स्केल. सो व्हाट वाज that's what we use in economic term for making profits. आज भी हर कोई कंपनी इसी तरह से प्रॉफिट बनाती है, बाय कॉस्ट ऑफ स्केल. क्योंकि बिजनेस ऑपरेशंस जितने भी होते हैं वो कॉस्ट ऑफ स्केल भी हैं. कि इनिशियली दे इन्वेस्ट अ लॉट, they invest in the machinery, they invest in R&D, they invest in all other aspects, all other factors of production, and finally when they produce it at mass scale, then it become economical and feasible, and that's how they make profit. क्योंकि अगर पूरी मशीनरी लगा के, 10 करोड़ की मशीनरी लगा के, अगर आप 500 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं, 500 रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स नॉट फिजिबल एट ऑल. लेकिन यही है, 10 करोड़ की मशीनरी लगा के आप एक साल के अंदर 10 करोड़ का माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, then you run that country for, let's say, 5 years. So in 5 years you are going to produce 50 crore units, and now let's say you have 2 rupees of profit per unit, then you are going to
on a revenue of 100 crore. And now, even if 50 crores is spent on all other expenses, administrative expenses, salaries हो गया, जितने भी tools, wares and उनके intermediate goods में हो गया, raw materials में हो गया, इन सब में भी देखते हैं तो now you have 50 crore solid profit, and that to combine with let's suppose you have took a loan from any particular bank of 10 crore. Now in 5 years you might have with interest it might have gone to 20 crore. So after deducting it you are left with 30 crore, so that's your profit. And on yearly terms you are making 6 crores of profit every year. So that's how economic of scale, cost of scale, that's how it work. और यही जो है वो उस टाइम पे भी आयरन एज के अंदर भी यही कंसेप्ट काम आया था कि इफ समथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल एट लो कॉस्ट, सो वो चीज तो है ही है, सेम प्लास्टिक वाला केस. देन other than economy of scale, cost of scale, the other thing is its strength and durability. So iron ये ब्रॉन्ज से है ना ज्यादा स्ट्रांग है एंड मोर ड्यूरेबल है, क्योंकि जो ब्रॉन्ज हो गया या जो कॉपर यूटेंसिल्स हो गए, सो दे कुछ टाइम के बाद ही दे आर वर्न आउट. यही सेम जो इवोल्यूशन है कॉपर से ब्रॉन्ज के टाइम भी यही था कि कॉपर से ब्रॉन्ज जो स्विच हुआ था वो उसका भी पर्टिकुलर यही है कि कॉपर जो है वो सॉफ्ट है एंड इट इजीली वर्न आउट. और सेम जो है ब्रॉन्ज को ब्रॉन्ज से आयरन का भी यही सेम रीजन है. नाउ ये है कि आयरन जो है इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इफ इट इज quenched then it can provide stronger and more reliable tools and weapons. Now quenching जो टेक्निक है इसमें एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है especially for iron. So iron, it is first heated to a very high temperature. Now जब ये completely red hot हो जाता है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा, so जब ये completely red hot material बन जाता है then it is dipped into any quenching material like water or oil. So जैसे ही इसको डिप करता है, this sudden cooling it traps carbon in crystal structure. So ये जो mechanism है, first superheating it to make it red hot, then dipping it in quenching material. So this sudden cooling it brings that that crystal structure, and that crystal structure it increases its hardness. So that was the mechanism that was used by iron age people. फिर यह है कि एग्रीकल्चरल टूल्स, प्लाउशेयर, सिकल्स, होज, वो सब यूज होने लगे और दे प्रूव क्वाइट एफिशिएंट देन द ब्रॉन्ज टूल्स. फिर यहाँ पे ये चीज जो है एंथ्रोपोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है that the use of iron tools it proved quite efficient, especially in heavy alluvial or black cotton soils of Ganga Valley. So यही Ganga Valley है around Magadha that provided fresh impetus to the rise of Mahajanpadas. और सेम यही फर्टाइल क्रेसेंट इन मेसोपोटामिया अराउंड इराक, ईरान. सो ये है कि ब्रॉन्ज टूल जो है इतने एफिशिएंट नहीं थे इन हार्ड सॉइल, बट यहाँ पे कह सकते हैं कि इन एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ गंगा वैली आयरन टूल्स जो है ये काफ़ी एफिशिएंट है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई, उसकी वजह से लार्ज एरिया कल्टिवेट हुआ दैट सपोर्टेड लार्जर पॉपुलेशन. देन लार्जर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो सेटलमेंट जो है वो भी एक्सपैंड हुए. पहले जन से फिर जनपद, जनपद से फिर महाजनपद, महाजनपद से फिर किंगडम्स. सो दैट्स हाउ द सिंपल स्टेप, a simple change in technology led to the rise of kingdoms. फिर नेक्स्ट के जो यूज ऑफ आयरन प्लव्स और आयरन implements in Ganga Valley, especially during PGW and NBW phases, it also enabled wet right cultivation. So wet rice cultivation
ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज नाउ ये चीज यहाँ पे आती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट व्हाट अबाउट द स्टेपल्स? सो स्टेपल यहाँ पे वेट राइस कल्टीवेशन, और ये कह सकते हैं कि वीट कल्टीवेशन वाज ब्रॉट लेटर, उस टाइम तक नहीं आया। पर खैर, जो राइस जो था उस वक्त का स्टेपल डाइट। सो बाकी आप समझ सकते हैं, if people are given something to eat and if people are food secure, then populations are going to increase, and that's how they are going to become dense later on. फिर सेम अफ्रीका में भी द bantu migrations, they had the knowledge of iron smelting. So उसकी वजह से जो farming communities जो हैं, they expanded into forest area, and that's how different tribes later became smaller ethnicities or smaller ethnic kingdoms. फिर आयरन इन वॉरफेयर। सो इसका बैकग्राउंड आपको अभी दिया ही था, और फिर से देख लेते हैं। सो फ्रॉम कैलकोलिथिक पीरियड, व्हेन वी हैड डेवलप्ड द कॉपर टूल्स, उस टाइम तक ही कॉपर टूल्स के साथ ही क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वॉज देयर। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की वजह से ट्रेडिंग ऑल्सो स्टार्टेड। सो ट्रेडिंग इकोनॉमी स्टार्टेड, जिसकी वजह से वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या वेल्थ इनइक्वालिटी वो जो है बढ़ने लग गई। उसके साथ ही फिर जो है फोर्टिफिकेशंस एंड वॉरफेयर भी चालू हो गया था। सो वॉरफेयर उसी वक्त कैलकोलिथिक पीरियड से ही हमारे साथ है, कैलकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के अंदर ही। लेकिन आयरन एज तक आते आते दिस वॉरफेयर इट वाज गिवन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पुश, क्योंकि नाउ वी हैव स्ट्रॉन्गर, शार्पर एंड मोर लीथल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉम्बैट। सो जिस तरह से सोफिस्टिकेशन हर एज के अंदर हो रहा है, कैलकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, हर एक एज के अंदर जो टूल सोफिस्टिकेशन, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, द मोडिफिकेशन एंड एडवांसमेंट, वो सब, all those area, all those changes of progress are happening. So यहाँ भी वही चीज है कि जो वॉरफेयर पहले भी था, फोर्टिफिकेशंस पहले भी थे, बट टूल्स जो है वो उतने स्ट्रॉन्गर, उतने स्ट्रॉन्ग, उतने शार्प नहीं थे। सो दैट्स वेयर वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आयरन सोर्ड्स विद बेटर कटिंग एबिलिटी, फिर स्पेयर्स, डैगर्स, एरोहेड्स, बैटल एक्सेस, फिर जो एक नॉलेज हिसाब से आपको है, हिताइट्स ऑफ एनातोलिया ऑफ मॉडर्न तुर्की, दे वर द अर्लीस्ट टू डेवलप आयरन टेक्नोलॉजी एंड यूज इट वॉर अराउंड 1400 BCE। सो ये एक सॉलिड एग्जांपल है, क्योंकि अपटेक ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, ये एग्जांपल आपको इसीलिए दिया है बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ एनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, it is uptaken, how it become prevalent, and why people use it for trade. क्योंकि we are looking at any trading economy कि जिसमें जो sustenance है of economy, it is not agrarian based. ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग जो है सिर्फ agricultural work में है। The people, they have their own work, they have their craft specialization. Now the thing is very simple. Now we, आज के टाइम में we take it for granted कि हम सब देखते ही हैं, लाइक एक टीचर को पैसा क्यों मिलना चाहिए, ये वैसे ही एक स्मार्टफोन बनाने वाले को पैसा क्यों मिलना चाहिए, एक कार चलाने वाले को, एक ट्रक ड्राइवर को पैसा क्यों मिलना चाहिए? मतलब जीने के लिए तो खाना चाहिए, है ना? ऑल वी नीड इज टू ईट, वी नीड फूड। सो दैट्स वेरी simple thing that often uh, is not understood by many economists कि अगर हमको सिर्फ फूड चाहिए तो फिर जो बाकी ऑक्यूपेशंस है उनको पे कौन करेगा? एंड चलो ठीक है, फूड के अलावा जो कुछ जो क्या सकते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं उनको कोई पे कर लेगा, बट बाकी के लिए सो वो होता है बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ डिमांड। दैट्स बेसिक थिंग, बेसिक concept of economy, demand versus supply. So a demand has to be created, and
uptake has to be there. If uptake is not there, if lot of people do not buy that thing, buy that product, then वो टेक्नोलॉजी जो है it becomes useless over time. सो यही सिमिलरली जो है ये हर एक एज में हुआ है. सो अब यहाँ पे जो हम इकोनॉमी की बात करें, डिफरेंट क्राफ्ट की बात करें, डिफरेंट क्राफ्ट डिफरेंशिएशन की, सो कुछ जो आयरन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं तो ठीक है, उनका अपटेक है क्योंकि फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो चाहिए. बट साथ में दूसरे के लिए ऑल राइट, वेल्थ इनइक्वलिटीज बढ़ गई है तो फोर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है, उनके लिए काम मिल गया. तो वेल्थ इनइक्वलिटीज की वजह से कॉम्बैट एंड वॉरफेयर भी है तो ठीक है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दोज पर्सनल हु आर एंगेज इन दैट सिक्योरिटी प्रोविजंस, ठीक है, उनको मिल गया. बट बाकी के लिए लाइक स्क्राइब्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट एंड अदर प्रोडक्ट मेकिंग, जो डे टू डे प्रोडक्ट यूज होते हैं, उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्यों मिलेगा. सो यहाँ पे वो सिंपल कंसेप्ट आता है अपटेक, और वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी वो उसका अपटेक उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है. डिमांड हैज टू बी क्रिएटेड. You do not create the demand. The time is a great trader in itself. टाइम अपने आप कर लेगा. बट एक टाइम पे किसी न किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड होती है, एंड नाउ दैट डिमांड मेक इट्स अपटेक हैपन. वो कैसे? ये यहाँ पे हिताइट जो है, हिताइट्स दे डिफीटेड द ब्रॉन्ज एज पीपल, द ब्रॉन्ज एज राइवल्स, यूजिंग the iron implements, iron tools or iron weapons. Now यहाँ पे iron weapon की वजह से you can defeat any enemy. This is the demand, and this demand made its uptake happen. जिस तरह से जो copper over stone tools, then bronze over copper tools, and similarly iron over bronze tools. So यही चीज है, और यही uptake जो है ये इसका और एग्जांपल लिख सकते हैं. जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट बाबर, कि बाबर वाज द पर्सन हु ब्रॉट द यूज ऑफ गन पाउडर इन इंडिया. नाउ ऐसा नहीं है कि बाबर के आने से पहले गन पाउडर या जो तोप है, कैनन्स हैं, दे वर नॉट यूज्ड या दे वर नॉट हियर इन इंडिया. लेकिन बाबर जो है, he was the first person who made them use effectively in any warfare on a large scale, and that's how he created a demand for gunpowder, demand for cannon, demand for weapons made of a gun. यही सिमिलर चीज है. तो जितनी भी अपटेक आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, सो ऑल ऑफ कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, इट बिकेम प्रिवलेंट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स अपटेक. Uptake means many people seeking it, many people demanding it, and that's how demand is created. Same nuclear का भी दे सकते हैं. Like जो the dropping of bombs over Hiroshima and Nagasaki, उसके पहले न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब के बारे में कोई डिमांड नहीं थी, कोई अपटेक नहीं था, and people were not even aware about it कि ऐसा कुछ हो सकता है. They were happy in their the traditional ammunitions, जो ट्रेडिशनल गोला बारूद है उसी में खुश थे. लेकिन उस टाइम पे जब बॉम्ब गिरे तब उसके साथ ही न्यूक्लियर एज शुरू हो गई. नाउ एवरीबडी, एवरी कंट्री सीक्स दैट दोज न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर फ्यूल, बिकॉज उनको पता है कि ये टेक्नोलॉजी मिल जाए देन दे हैव सम काइंड ऑफ पावर. सो दैट्स हाउ डिमांड इज क्रिएटेड, दैट्स हाउ एनी ट्रेडिंग इकोनॉमी वर्क्स. सो ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली उसी के लिए डाला गया है. फिर सिमिलर अपटेक्स इंडिया में भी, जो महाजनपद पीरियड है एंड लेटर मगधन पीरियड, both of them they use iron weapons to expand their power. And in China as well, the Zhou dynasty, it witnessed the large scale use of iron in armies. So तीनों examples जो है, they give us an idea about how this technology was uptook on a large scale. फिर बात करते हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. सो इफ एनी टेक्नोलॉजी इज अपटेकन, देन नाउ इट गिव impetus, it give boost to other crafts that are associated with it, that are attached to it. So ये कह सकते हैं
एंड कि इसी के साथ जैसे ही ये आयरन वर्किंग शुरू हुआ, या कह सकते हैं द अपटेक ऑफ आयरन स्टार्टेड। नाउ जब अपटेक स्टार्ट होता है तो उसके साथ जितनी भी अटैच इंडस्ट्रीज हैं, न्यू क्राफ्ट ट्रेडिशंस, जैसे ये कह सकते हैं कि जो चारकोल फ्यूल्ड फर्नेसेस, क्योंकि आयरन बनाने के लिए ये फर्नेसेस चाहिए। तो नाउ ये एक चीज जो है वो बढ़ने लगे, तो साथ में ही फर्नेस डिजाइन है, ब्लैक स्मिथिंग है, अलॉय एक्सपेरिमेंटेशन है, सीकिंग ऑफ न्यू वर्क है। एक तरह से जो ट्रेडिशनल या प्रिमिटिव आर एन डी है वो भी शुरू हो गया। तो इस तरह से नए जो क्राफ्ट्स जो हैं वो भी बनने लग गए। एंड नाउ द क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इट इट रीच अ डिफरेंट फॉरवर्ड। नाउ अब कोई इस टर्म में नहीं सोच रहा था कि नहीं, वी माइट हैव टू टेक एग्रीकल्चर एज अ साइड बिजनेस, क्योंकि यही चीज जो है पहले कैलकुलेटिव तक तो चल रही थी कि पीपल वर स्टिल एंगेज। घर में से कोई एक ना एक तो, या सम फैमिली, वो जो है एग्रीकल्चर के साथ में कोई ना कोई कॉटेज बिजनेस जो है उनका चलता ही था। बट एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टेट, क्योंकि इट वॉज अ काइंड ऑफ अ फॉल बैक थिंग, कि कुछ भी काम न करें तो कम से कम खाने के लिए अनाज दो। बट इस एज तक आते आते क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इट रीच डिफरेंट फॉरवर्ड। आई से इट बिकॉज इस टाइम तक आते आते क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इट लेड टू द राइज ऑफ वर्ना सिस्टम। वो आप समझ सकते हैं कि अब जो पर्टिकुलर क्राफ्ट जो हैं, ऑक्यूपेशंस जो हैं, दे बिकेम रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर वर्ना और पर्टिकुलर कास्ट। फिर बात करते हैं इंडियन एम्पायर की, आयरन एज एम्पायर्स। So first, the Iron Age in India, it started during 1500 BCE. So the first phase, first 500 years from 1500 BC to 1000 BC, they lied in the early Vedic period, which coincided with the decline of Indus Valley civilization and the arrival of Indo-Aryan speakers. So ये वो टाइम था। Now इसी टाइम पे एक ऋग्वेद जो है, एक वेद ऋग्वेद, इट वाज कंपोज्ड, एंड उसमें सेमी नोमैडिक पास्टरल सोसाइटी, मोस्टली द इन्वेडर्स, इंडो आर्यंस, उनके बारे में लिखा गया था। देन इस पर्टिकुलर टाइम तक, अर्ली आयरन एज तक या इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, आयरन के बारे में कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। बट लेटर यजुर्वेद, अथर्ववेद, दे रेफर टू श्याम अयास। तो श्याम अयास, ब्लैक मेटल, दैट माइट हैव मेंट आयरन। फिर यह है कि 1000 बीसी तक, यानी आफ्टर द एंड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जैसे अतरंजी खेड़ा है, जखेड़ा है, उत्तर प्रदेश, या गंगा वैली जो है, यहाँ पे अराउंड 1000 बीसी जो आयरन टूल्स, आयरन इंप्लीमेंट्स, इन सब के एविडेंस मिले हैं। सो दिस सजेस्ट कि बाय द एंड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड द आयरन टेक्नोलॉजी इट बिगेन मेजर अप टू। फिर लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1000 बीसी टू 600 बीसी, इस टाइम तक गंगा वैली के अंदर, मिडिल गंगा वैली, जिसमें लेटर महाजनपद वगैरह आएंगे, उसी में बड़े स्केल पे आयरन यूज, आयरन अपटेक शुरू हो गया था। फिर इसी में देखेंगे कि जो विलेज सेटलमेंट जो हैं वो भी बनने लग गए, क्योंकि वो अब तक इस ये समझ गए कि आयरन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सो अग्रेरियन सरप्लस है, पॉपुलेशन के पास फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। देन एक किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर इफ रेनफॉल इज देयर एंड वाटर सप्लाई, क्योंकि हम मिडिल गंगा वैली की बात कर रहे हैं तो वाटर सप्लाई, बहुत सारे रिवर्स हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी। सो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही है तो सोशियो पोलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन भी होगा, क्योंकि यही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता है तो वेल्थ डिफरेंशिएशन होता है, वेल्थ इनइक्वालिटीज जनरेट होती है, वेल्थ इनइक्वालिटीज की वजह से फिर जो है ना सोसाइटी के अंदर डिफरेंट स्टेट आ जाते हैं, रिच वर्सेस पुअर, फिर मिडिल क्लासेस, फिर अपर मिडिल, फिर लोअर मिडिल, इस तरह से। फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन बार बार ये चीज आ रहा है कि अगर किसी टेक्नोलॉजी का अपटेक बढ़ता है तो उसके साथ अटैच जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उन सब के अंदर भी चेंजेस होते हैं। सो दैट्स हाउ द होल सोशल फैब्रिक, सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक फैब्रिक, होल फैब्रिक लिफ्ट्स अप। सो यहाँ पे भी कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, पॉटरी, और जो बाकी जो चीजें यहाँ पे दी हुई नहीं है, जैसे
जो जो क्लोथ्स के बारे में है, फैब्रिक्स के बारे में है, वो चीज़ नहीं दी है। फूड वैरायटी, फूड सिक्योरिटी, उसके बारे में नहीं दिया हुआ है। चैरियट्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, है ना, फेस्टिवल्स के, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में। तो ये होता है कि एक टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके साथ ही पूरा का पूरा जो फैब्रिक है वो चेंज होता है, वो ऊपर उठता है। नाउ वी आर लुकिंग at the end of later Vedic period and the rise of Mahajanpadas. तो ये है कि इस टाइम तक आते आते लेटर वैदिक पीरियड में जो डेंस पॉपुलेशन जो है, दे प्रोवाइडेड, they gave rise to Janpadas. So Janpada, it's like the village territory. Now यही जो village territories हैं, ये after political consolidation they formed Mahajanpadas. So you can see them as a group of little republics or group of villages. तो यही group of villages जो हैं, जो 16 of them, 16 such large group, they were known as Mahajanpadas. तो जैसे सिटीज हैं, राजगृह, वैशाली, कौसाम्बी। सो ये यहाँ पे इन्हीं महाजनपद पीरियड में यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटीज, रोड्स, इरिगेशन सिस्टम, अ काइंड ऑफ प्रोटो अर्बनाइजेशन स्टार्टेड। फिर वॉरफेयर एंड एक्सपेंशन, वो तो है ही है। फिर ये है कि पोलिटिकल सिस्टम भी बनने लग गए ना। ये यहाँ पे चीज है कि व्हेन पोलिटिकल कंसोलिडेशन स्टार्ट्स, जो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड से यहाँ तक है, I want you to pay close attention to it कि यहाँ पे later Vedic period, agrarian surplus, increase in population density, socio-political stratification, और उनकी वजह से the basic village polities या फिर basic republic polities, जो भी है, जिस भी नाम से जानना चाहें, यहाँ पे we know them as Janpadas. And in today's term, those Janpadas are most quietly they are related to modern villages, क्योंकि हम बात भी आयरन एज की कर रहे हैं। सो इवन इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन उस वक्त पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी। सो उस वक्त की पॉपुलेशन के लिए वो पॉपुलेशन पॉपुलेशन वाइज डेंस थे। और वो फिर जो जितने भी लोग जो वहाँ पर्टिकुलर एक जगह पे रह रहे थे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट टोटल था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और स्टेबल एग्जिस्टेंस। सो विलेज वही जनपद, वही 16 जनपद जो है वो मिलके एक महाजनपद बने। फिर जब महाजनपद बने और जो 16 के 16 जो है, इफ दे आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, स्पेशली इन टैक्सेशन एंड ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि इफ 16 जनपदस are forming together, are coming together to make a larger political system, so उसमें first political centralization will be there, क्योंकि अब they have come together। फिर they need political security, they need political uniformity, और उन सब के लिए centralization of power was the only way forward। और साथ में फिर ये है कि एग्जिस्ट करना है तो बिना टैक्सेशन के, कि that centralized authority, it also needed revenue to fund all the endeavors like political security हो गया, diplomacy हो गया, जितने भी हैं, and then to manage its affair it also need bureaucracy। फिर ये जो 16 जनपदास थे उनके अंदर कुछ चेंजेस भी थे। जैसे जो वैशाली थे जो है, दे वर रिपब्लिकन ओलिगार्कीज, और लाइक मगध जो है दे वर मोनार्किकल एम्पायर। फिर ये तो बेसिक इसका। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू द मौर्यन एम्पायर। नाउ बाय दिस टाइम वी हैव कम टू अ फैमिलियर टेरिटोरी। फैमिलियर बिकॉज ये सब चीजें जो हैं ये तो हमें समझ में आती हैं, बिकॉज ये सब तो हम आज भी अपनी मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर भी ये सब फीचर्स देखते हैं। दैट्स व्हाई आई कॉल वी हैव अराइव एट अ फैमिलियर टेरिटोरी। अब यहाँ पे समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। नाउ इस टाइम तक आते आते जब महाजनपदस वो जो है दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, और फिर उसके साथ ही द मौर्यन एम्पायर रोज, विच वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो मिडिल गंगा वैली में अब तक जो महाजनपद थे ना, उनकी जगह पे एक
सिंगल कोहेरेंट एम्पायर, और ना सिर्फ महाजनपद बल्कि एक बहुत बड़े स्केल पे कह सकते हैं कि अप टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सदर्न इंडिया में भी जो पेनिनसुलर है उसके एज तक। सो ये एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। नाउ द रीजंस, फर्स्ट ही हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। सो ये एक फर्स्ट फीचर है। और आप जो है ये आप कैलकोलिथिक से देखेंगे तो कैलकोलिथिक नियोलिथिक उस टाइम पे स्टैंडिंग आर्मी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन इस टाइम तक आते आते जब ये हमारे पास अब जो एडवांसमेंट जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। यही सेम जो है हम आज के टाइम पे भी देख सकते हैं कि ये अब कुछ थोड़े से जस्ट जस्ट 20 साल पहले चले जाएं, यू नो, भी उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना था ही नहीं जितना आज के टाइम पे है। आज वी हैव, यू नो, एआई, वी हैव मशीन लर्निंग थिंग्स, देन फिर बायोलॉजी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन स्पेस में वी टॉकिंग अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशंस। एंड ये सब जो मैं जो बता रहा हूँ ये सब अ, एक सरफेस लेवल पे, एक सुपरफिशियल लेवल पे मैं बता रहा हूँ। बट इन डेप्थ इन सब टेक्नोलॉजी में जब मैं बोल रहा हूँ तब भी इन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। और ये है कि जो ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में ये AI ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इसकी तरफ जाएगी। साथ में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, अदर टेक्नोलॉजीज, उन सब के अंदर अपग्रेडेशन होगा। खैर वापस बैक टू द टॉपिक। सो जो आज हम देख रहे हैं 20 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, 20 साल के पहले जो लोग जो हैं दे वर टॉकिंग ऑन पेजर। नाउ आज हमारे पास जो है मेटा है, हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटीज हैं, हमारे पास वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर हैं, इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं। सो ये जो वाइड डिफरेंस है, वाइड गल्फ जो है, सेम चीज जो है यहाँ पे हुई। कैलकोलिथिक से लेकर यहाँ पे, यू नो, मेंटेनिंग ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, सो इट वाज अ क्वाइट अ जायंट लीप, क्वाइट अ बिग लीप। लेकिन ये चीज हुई क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो अगेन सेम पूरा सोशल फैब्रिक जो है, सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक फैब्रिक है, पूरी सोसाइटी जो है, पूरा जो टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड है वो पूरा का पूरा एक साथ ऊपर बढ़ता है। सो जो मॉरियंस जो है दे हैड iron weapons, lances, bows and war elephants. Where they divided their provinces with a bureaucratic system supported by taxation, agriculture and mining. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर सस्टेन इटसेल्फ। सो लार्ज एम्पायर, लार्ज आर्मी खड़ी करना, इट इज अ ह्यूमंगस टास्क। बट उससे भी बड़ा टास्क है टू प्रोवाइड फॉर दैट आर्मी। क्योंकि लार्ज आर्मी को जितने भी उसके सोल्जर्स होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन होते हैं और जितने भी सेटअप्स होते हैं, उन सब के लिए यू नीड लॉट ऑफ रेवेन्यू। और वो रेवेन्यू जो है इट कैन कम बाय टैक्सेशन। नाउ टैक्सेशन जो है, यू कैन नॉट जस्ट लेवी एन अप्रोप्रिएट टैक्स फ्रॉम पीपल एट योर विल। सो उसकी वजह से लोग जो है दे विल लीव द प्लेस, एंड यू नीड पीपल, यू नीड द कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स योर प्रोजेक्ट। और वो तभी होगा when you have an efficient system that you and people agree with. So that was a bureaucratic system levied to support, maintain, established to levy taxes, and that taxation system it supported everything because it is the revenue that that is at the core of everything. चंद्रगुप्त मौर्य या कोई भी एम्परर जो है, ये कोई बड़ा एम्पायर, कोई बड़ी सेना या फिर कोई भी बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो बिना रेवेन्यू के नहीं कर सकता। और कोई भी बिना रेवेन्यू, ब्यूरोक्रेसी, किसी मशीनरी के बिना नहीं हो सकता। और वो मशीनरी बिना टैक्सेशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और कोई भी टैक्सेशन जो है बिना इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नहीं हो सकता। सो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में कौटिल्य, ये इन दोनों ने they beautifully carved out the first largest empire, the first modern empire of Indian subcontinent. फिर the next thing, economic integration.
If you want to hold all your provinces together, all your the whole nook and corner of your empire together, तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी के अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी जरूरी है, इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी जरूरी है. तो हियर कम्स कॉइन्स. सो ये एक और चीज आप देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेटिक एज, नियोलिथिक, कैलकुलेटिक, म्यूजोलिथिक, उस टाइम पे जो होमोसेपियंस है उनको कोई पता ही नहीं था कि कॉइन्स भी कुछ होते हैं या करेंसी भी हो सकती है. बट दैट्स हाउ इकोनॉमी, एनी पर्टिकुलर सोसाइटी सिविलाइजेस. सो कॉइन्स के अलावा टूल्स हैं, वेट्स हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, ऑल ऑफ देम दे नीड यूनिफॉर्मिटी. एंड दैट यूनिफॉर्मिटी, it is facilitated by the same hands that created the empire. यानी एम्पायर में जो दूसरी चीजें हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अलॉन्ग विद लार्ज स्केल आर्मी, यही वो चीजें हैं, यही वो मैसेंजर्स हैं, या यही वो नोट्स हैं, यही वो स्ट्रिंग्स हैं that weave the whole empire together. और यही वो स्ट्रिंग्स हैं that brings that kind of integration, जो हर जगह, जो एम्पायर के हर एक कोने में करेंसी, कॉइन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टूल्स, या जो अदर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वेपन्स हैं, उन सब के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाना, उन सब के अंदर इंटीग्रेशन करना, ये सब जो है वो उन्हीं स्ट्रिंग्स का काम है. फिर वो वही उसी काम के लिए तो आप पढ़ रहे हैं. यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो हैं ये वही स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे हैं दैट कैन मेंटेन सच अ लार्ज एम्पायर. फिर कम गुप्ता एम्पायर. नाउ गुप्ता एम्पायर एंड मौर्य एम्पायर, सो इन दोनों में ये है कि मौर्यन एम्पायर, इट वाज फॉर कंसोलिडेशन, कि फर्स्ट टू क्रिएट एन एम्पायर एंड देन वीव the whole empire into a uniform network. That's what political consolidation is. So ये जो चीज है, creation and weaving different people, different society, different places into uniform network, it was done by the Mauryas. लेकिन the Gupta period, उनके पास तो यह टेम्पलेट क्रिएट हो गया. They did not need to create any empire from scratch, and they did not need to bring that trading, that economic, that military equipment, agricultural equipment, or any kind of integrity, any kind of uniformity, because वो ऑलरेडी आ चुकी थी उस टाइम तक. जो कैलकुलेटिक, मीजोलिथिक के टाइम पे नहीं थी, वो यूनिफॉर्मिटी, वो इंटीग्रेशन ऑलरेडी मौर्यन एम्पायर तक आ चुका था. नाउ दे हैड अ डिफरेंट टेम्पलेट, और अब उस टेम्पलेट में दे नीडेड टू मेक अनदर रिफाइनमेंट, they needed to go ahead, they needed to push ahead, and that's what they did. So गुप्ता एम्पायर जो है, जिसको हम गोल्डन एज भी बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, गोल्डन एज ऑफ एम्पायर, वट एवर नेम, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो इतनी है that the template upon which they stood, the Mauryan Empire upon which they moved ahead, the Mauryan Empire upon which they refined, it was the best in itself. And that's how you do. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छा घर बना के दिया है, and you have your social security in place, you have something in your bank account, and you have many security deposits in your name, then you are well placed, and it's your duty to go ahead, your duty to advance, your duty to progress for your future. And then यही चीज जो है ये गुप्ता एम्पायर के साथ हुई, that they had everything in place, but they are known इसलिए नहीं कि they exploited someone else's work, इसलिए कि they did not ruin it, कि उनके पास कोई चीज मिली है, सब कुछ बना बनाया मिला है, एक वेल नेटवर्क, वेल इंटीग्रेटेड एम्पायर मिला है. सो दे डिड नॉट रुइन इट, उन्होंने उस पर आगे कुछ किया. सो जैसे उनके एडवांसमेंट में देख सकते हैं कि जो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली है, सो इट वाज अ टेस्टामेंट टू एडवांस इंडियन मेटलर्जी ऑफ गुप्ता पीरियड. फिर सेम अदर नॉलेज फील्ड की बात करते हैं तो द गुप्ताज इन्वेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी एंड व्हाट नॉट. उनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स
इंडिया में आए, बहुत सारे इंडिया में थे, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में काम किया है। फिर लिटरेचर फील्ड में वही है, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, टेम्पल्स हो गया, स्टेट स्पॉन्सरशिप and the patronage was there. Fair, they also took the trade network further. जो अभी तक जो टेरेस्ट्रियल ट्रेड नेटवर्क था, they brought it to inland and maritime area. फिर उन्हीं के टाइम पे maritime area तो शिप बिल्डिंग, रोड मेंटेनेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑल इन ऑल ये डिटेल्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब जो है हिस्ट्री का पार्ट है। बट सक्स इन शॉर्ट यही है कि यस, द गुप्ता एम्पायर, they did their best and they took society manifold ahead of their time. फिर बात करते हैं अदर रीजनल आयरन एज कल्चर्स। तो रीजनली साउथ इंडिया के अंदर मेगालिथ्स आए हैं। मेगालिथ्स मीन्स लार्ज स्टोन जो है, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स, दे वर इरेक्टेड एज as a memory of someone who have died. So, in other words, they were known for their megalithic memorials and burials. So ये स्ट्रक्चर्स है डिफरेंट, डॉलमेंस हो गए, केर्न्स हो गए, अर्न बरियल हो गए, डिफरेंट टाइप्स की किस तरह से स्टोन को रखा जाता है। कभी एक दो स्टोन के ऊपर एक स्टोन रख लिया, ये वाली स्ट्रक्चर हो गया, या कभी एक स्टोन के ऊपर ये एक कैप जैसे रख लिया। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डॉलमेन, केर्न, बहुत सारी। सो ये एक मेगालिथिक कल्चर था साउथ इंडिया में, जो एक रीजन कल्चर एंड दैट रिफ्लेक्ट वॉरियर पास्टरल सोसाइटी। एंड सेम एक और कल्चर, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। सो ये यहाँ पे आगे देखते हैं पॉटरी के अंदर। सो अगेन ये जो जो इसका एरिया है अराउंड द आउटर एजेस ऑफ गंगा वैली। सो ये यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि जब सबसे पहले ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज जो इंडो आर्यंस, जो आर्यंस इंडिया में आए थे, जो इन्वेडर्स इंडिया में आए थे, सो ये जो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट है उसी में कॉन्सेंट्रेटेड थे, और यहीं पे उसी टाइम पे अर्ली वैदिक एज थी जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था। सो यहाँ पे ये जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, it is a transitional phase between that early Vedic and महाजनपदा पीरियड। क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक एंड महाजनपदा पीरियड, सो क्योंकि वैदिक एज के बाद ही महाजनपद बनने शुरू हुए, वैदिक एज तक जनपद थे, एंड दोज जनपद दे वर कंसोलिडेटेड इनटू लार्ज टेरिटरीज, लार्ज पॉलिटीज। सो इसलिए सिग्निफिकेंट है। फिर ग्लोबल आयरन एज एम्पायर्स की बात करते हैं, जो रोमन एम्पायर है। सो रोमन एम्पायर इट मास्टर द आर्ट ऑफ रॉट आयरन, और उसकी वजह से शॉर्ट सोर्ड्स, डैगर्स, स्पेयर्स, हेलमेट्स, बहुत सारे वेपन्स बनाए। फिर रोमन सोल्जर्स जो हैं, अब इनकी और डिटेल में बात कर नहीं सकता, आप लोग पीडीएफ में देख लेना, सिर्फ वेपनरी के बारे में है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यस, just like Mauryan, just like Gupta, they also built many roads and aqueducts, bridges, amphitheater, public baths. Fair, yes. In governance and cultural integration, so same as the Mauryan Empire, same as the Gupta Empire, they had provincial governance, which codified law and citizenship policies. Fair trade and culture. So they linked three continents through land and maritime trade, including the Silk Road, the Amber Road, and Mediterranean sea routes. बाकी आपके इसमें काम का है नहीं। Then Achaemenid Empire है, which was founded by Cyrus the Great, and a large empire which extend from Aegean Sea to the Indus Valley. फिर अब डिटेल में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा जा चुका है। तो बेसिक जो है बता दिया आपको कि किस तरह से कोई भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है, द अपटेक ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ इट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट टेक्नो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैब्रिक, और किस तरह से उस अपलिफ्टमेंट, उस
जो कम्युलेटिव या जो सिविलाइजेशनल अपलिफ्टमेंट है, सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट में, उसमें किस तरह से बाकी जितनी भी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आती। जब भी हम बात करते हैं, वी डू नॉट यूजुअली टॉक अबाउट कारपेंट्री, blacksmiths. We do not talk about how roads were constructed. We do not talk about how different materials, how taxation work, how the first idea of levying and appropriation of taxation was brought into the first emperors, how the first empires were made, या फिर how did the earliest bureaucrat collect the taxes. So ये चीजें जो हैं आज हमें जो है वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि सब सब सुनी सुनाई लग रही है। बट आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव के लिए ये चीज जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से सबसे पहले द नीड वाज फेल्ट, द नीड वाज फेल्ट फॉर टू bring the uniformity in every nook and corner of empire, and uniformity in everything. So first uniformity was necessary, which was an economic and trade thing. So economic integration was needed, and in economic integration it was facilitated by taxation, and taxation, it created the demand for bureaucracy. So, and bureaucracy, it created demand for infrastructure. सो वो आप बाकी अपने आप में समझ सकते हैं कि किस तरह से ये इंटर रिलेटेड जो क्राफ्ट है, दे supported each other, and that's how the first large economy, first large empires worked, and how they came to exist for that long time. और दूसरा कारण ये भी है कि यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क हाउ रोमन एम्पायर वर्क, या व्हाट वाज द मिलिट्री एंड आयरन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग डिफरेंट एम्पायर्स. सो ये जानते हैं कि आयरन एम्पायर जो भी पर्टिकुलर एज है उसके अंदर वेपनरी सिमिलर है, बस टूल्स चेंजेस हुए हैं. एंड देन सेम दे वर सम सोफिस्टिकेशंस, लाइक जैसे यहाँ पे कह सकते हैं बो एंड एरो मिजोलिथिक टाइम से है, लेकिन यहाँ पे आयरन टिप एरोज हैं. स्पेयर्स एंड डैगर्स, दे वर इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग पैलियोलिथिक टाइम, बट हर एक पर्टिकुलर एज के अंदर द मेटल चेंजेस and the technological sophistication is already there. Then immortals, इसमें Achaemenid Empire में elite an elite royal guard unit, it was heavily armed with iron weapons. Fair administrative innovations, so satrapies were there which were governed by satraps, a decentralized system. So ये एक चीज यहाँ पे अलग है Achaemenid Empire में कि Roman Empire, Modern Empire, Gupta Empire, all of them, they were centralized. But here, this empire, it worked on decentralization, क्योंकि decentralization से ही उस टाइम पे इतना large empire रखा जा सकता था. आज के टाइम पे तो we have modern modes of transportation, तो यहाँ पे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना बहुत इजी है. लेकिन उस टाइम पे आयरन एज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा एम्पायर रखना, एजेंसी टू द इंडस वैली, यानी ये कह सकते हैं फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ यूरोप टू पाकिस्तान, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने के लिए, वो भी विदाउट the facility of modern transportation. So this could not have been facilitated without any decentralized network. और वो कैसा था? By creating provinces. और उन provinces में जो भी गवर्नर थे, सत्राप्स थे, they were given large autonomy. And then जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो भी क्रिएट किए गए ताकि जो कम्युनिकेशन जो है, हेस्टी कम्युनिकेशन, इट कैन हैपन. फिर जैसे एक ये है इंफ्रास्ट्रक्चर में द रॉयल रोड विच स्ट्रेच 2700 किलोमीटर फ्रॉम सार्डिस टू सूसा. सो ये आप देख सकते हैं किस तरह से उस एक एम्पायर की नीड ने, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नीड की वजह से एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया. फिर बात करते हैं आयरन एज पॉटरी की. सो यहाँ पे आयरन एज पॉटरी जो दो चीजें हैं जो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, दिस पॉटरी इट रिवील्स समथिंग, और ये यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट Iron Age pottery reveals the transition from small-scale agrarian village to complex urban settlement. या सिंपल और करें तो it
the Iron Age pottery, it is a transition from village to urban settlement. So ये कैसे suggest करता है, ये कैसे, ये transition कैसे है, आगे देखते हैं. फिर second, this transition also mirrors diversification in form, functions and decoration. So इस टाइम तक आते आते जो पॉटरी जो है उसके भी अलग अलग यूसेज बढ़ने लग गए थे, एप्लीकेशंस बढ़ने लग गए. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस टाइम तक आते आते वी आर नॉट इन एनी स्टोन एज कल्चर. we are talking about urban civilization, we are talking about empire. तो साथ में जितने भी अटैच, जितने भी पेरिफेरल क्राफ्ट्स हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं. और पेरिफेरल क्राफ्ट्स बढ़ रहे हैं तो सोसाइटी का स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहा है. सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो हाउसिंग स्ट्रक्चर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब भी बढ़ रहा है. तो साथ में जो यूसेज हैं किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के, वो भी डाइवर्सिफाई होंगे. नाउ इंडिया के अंदर की आयरन एज पॉटरी टाइप. तो फर्स्ट टाइप इज ब्लैक एंड रेड वेयर ड्यूल कलर पॉटरी मेड यूजिंग कंट्रोल फायर. नाउ अब होता क्या है कि इस ब्लैक एंड रेड वेयर के अंदर फर्स्ट जो वेसल्स होते हैं दे आर ड्राइड. फर्स्ट उनको पॉटर्स व्हील पे उनको बना के, उनको शेप दे के दे आर केप्ट टू ड्राई. फिर ड्राई होने के बाद देन दे आर पुट इनटू एनी फर्नेस, भट्टे के अंदर, एनी किल. फिर अब यहाँ पे उस किल में दे मेक इट ऑफ टू पार्ट, दैट्स व्हाट ड्यूल कलर. कि उस भट्टे के अंदर जो लोअर पार्ट जो है इसको फुल हीट दी जाती है. फिर जो अपर पार्ट है उसी पॉटरी का उसको ढक दिया जाता है. इन इट इज केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ लो ऑक्सीजन. सो अब ये दोनों चीजें हैं, इसको ऐसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग. सो ऑक्सीडाइजिंग इसके अंदर कि इट इज हीटेड एंड देन सप्लाइड फुल ऑक्सीजन सप्लाई. नाउ उसकी वजह से क्या होता है कि जब लो पार्ट को हीट किया जाता है बट इट हैज प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जो अपर पार्ट है इट इज ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, लो ऑक्सीजन, उसको ढक के रखते हैं तो ऑक्सीजन नहीं होती. कैसी भी ढक सकते हैं, किसी बोरी से या फिर हे से हो गया, जो वेट्स हे होती है उससे, भूसे से ढक सकते हैं. सो उससे क्या होता है कि नो, जो लोअर पार्ट जो है उसको ऑक्सीजन सप्लाई और उसको हीट करने से जो अपर पार्ट है जो लो ऑक्सीजन वाला, ये हो जाता है रेड. नाउ ऊपर वाले पार्ट के कारण जो नीचे वाला पार्ट जो है ये हो जाता है ब्लैक. That's how it works. That's how red and black and red ware pottery is produced. I explain it again. सबसे पहले पॉटर्स व्हील पे एक व्हील मेड पॉटरी है, उसको बना के इट इज लेफ्ट टू ड्राई. फिर उसके बाद इसमें दो फेज में काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग. सो नीचे वाला पार्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग, इट मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे फुल होती है, यानी उसको ढक के नहीं रखते. फिर जो अपर पार्ट जो है उसी पॉटरी का उसको ढक के रखते हैं, इट इज ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, इट इज सप्लाइड लो ऑक्सीजन. नाउ फिर जब उसको हीट करते हैं तो उसकी वजह से जो अपर पार्ट है इट बिकम्स रेड एंड लोअर पार्ट इट बिकम्स ब्लैक. एंड दैट्स व्हाट BRW इज. नाउ द सेकंड वन, पेंटेड ग्रे वेयर. नाउ PGW में क्या होता है, फर्स्ट पॉटरी जो है, जो भी वेसल है, नाउ दैट वेसल is baked, it is fired in any kiln at high temperature. But here the oxygen supply it is often reduced. So that reduction in oxygen supply, जो भी kiln है, kiln के अंदर vents होते हैं for oxygen supply, कुछ बड़े छेद रखे जाते हैं ना, उसी वेंट को जो है बंद कर दो तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है. सो सेम यहाँ पे भी यही है, उसी वेसल को बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जा रहा है, बट देन उस ऑक्सीजन सप्लाई कम है, उसकी वजह से उस पॉटरी का जो कलर है वो ग्रे हो जाता है एंड दे आर हाईली ड्यूरेबल. देन फिर जो पॉटरी जो है उसी के ऊपर
बहुत सारे जो पेंट किए जाते हैं लाइक सर्कल्स लाइंस using black pigments. So that's why the name painted gray ware, and it is associated with the later Vedic settlements. And फिर बात करते हैं NBPW की नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. सो इसके अंदर नो रिफाइंड क्ले यूज की जाती है. फिर रिफाइंड क्ले को हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं. फिर अब जो वेसल है कि जो भी पॉटरी बनाई है उसका सरफेस जो है वो पॉलिश कर दिया जाता है, विद विद डीप ब्लैक. सो इस पॉलिश की वजह से उसका जो जो कलर जो है ये काफी ग्लॉसी लगता है. एंड दैट्स व्हाई this northern black polished ware, and it is linked with Mauryan urbanism and elite households. So ये तीनों पॉटरीज जो हैं ये बार बार आती है, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया. सो अब और कोई क्वेश्चन है सो यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स. वैसे आपको जो भी ये बताया है ये आपको आपके यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही आपको सारे नोट्स जो हैं या फिर जो कंटेंट डिलीवरी है ये उसी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है. एंड फिर कोई क्वेश्चन है you can drop the comment and you or you can interact in the community section. Thank you.